Hello students, today our topic of discussion is magnetic element of earth, that is declination, dip and horizontal component of earth. So the magnitude and direction of magnetic field of the earth at a place are completely given by three quantities called magnetic elements. So before we understand about these three quantities, let me tell you about this diagram because this diagram will help you to understand all these things. So here it is. This is the small model of the earth and this is NG. NG stand for, this is the north pole of the geographic, that is geographic north, means के earth का north pole है. This is SG, means के south pole of the earth, that is geographic south. And this is the SM. SM means के south pole of magnet and this is the north pole of magnet. Basically this is the north seeking pole of magnet. You know, when a magnet is suspended on the earth surface, then its one pole that is points towards the north called north seeking pole. So basically it is the north seeking pole, but actually it is SM, that is south pole of the magnet, and this is the north pole of the magnet. So these are the magnetic equator and this is called a geographic equator. So one more thing I want to tell you, that what are geographic meridian and magnetic meridian. Geographic meridian, it is the vertical plane which passes through the geographic axis. जो कि जोग्राफिक एक्सिस में से बेटा जो हमने एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करा होता है उसको बोलते हैं जोग्राफिक मेरिडियन. एंड वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक मेरिडियन. सो मैग्नेटिक मेरिडियन इज द वर्टिकल प्लेन दैट passes through the magnetic axis. And one more thing there is, I have written, that is magnetic equator. Magnetic equator, it is a great circle on the earth perpendicular to magnetic axis, that is called a magnetic axis. So you can draw the magnetic axis just like this way. So now we will start with the one by one components. फर्स्ट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सेकंड इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जिसका नाम डीप है, और थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ. सो द फर्स्ट वन दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसको बेटा हम थीटा से बोलते हैं. एंड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट अ प्लेस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस. Magnetic declination at a place is defined as the angle between geographic meridian and magnetic meridian at that place. So जो एंगल बेटा geographic meridian में और magnetic meridian में बनेगा that is called a magnetic declination theta. मैं यहाँ आपको डायग्राम में बताऊँ बेटा. So this is the angle, that is angle theta, which is equal to 11.3 degree. So this is the angle between the geographic meridian एंड दिस इज जोग्राफिक मेरिडियन एंड दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो इन दोनों में जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसको हम थीटा से लिखते हैं. इसको मैं थोड़ा और क्लियर करूं बेटा आपको. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक जो है वो कंपस की नीडल है. ये इसका मैंने नॉर्थ पोल लिखा है, ये इसका जो साउथ पोल है. एंड दिस लाइन दैट इंडिकेट द ट्रू नॉर्थ मीन्स के दिस इज द एक्चुअल नॉर्थ पोल ऑफ द जोग्राफिक, दैट इज जोग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज द जोग्राफिक साउथ. सो बेटा ये जो ट्रू नॉर्थ में और इस मैग्नेटिक नॉर्थ में, अगर वो डेफिनेशन आपको थोड़ा अगर टफ लग रही समझने में तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. इसमें एक और मैंने लिखा है, द एंगल बिटवीन द नॉर्थ शोन बाय द फ्री हॉरिजॉन्टल कंपस नीडल. ये आई कंपस नीडल. तो जो ये फ्री हॉरिजॉन्टल कंपस नीडल जो है वो ये अपना नॉर्थ दिखा रही है, और इस नॉर्थ का एंगल जो है वो ट्रू नॉर्थ के साथ, यानी कि ट्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ के साथ अगर ये एंगल बने हैं, सो दैट एंगल इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. दिस इज द थीटा. अब आपको क्लियर हो गया होना. दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज द नॉर्थ शोन बाय द फ्री सस्पेंडेड कंपस. सो यहाँ मैंने इसकी बेटा डेफिनेशन लिखी है, एंगल बिटवीन द नॉर्थ शोन बाय द फ्री हॉरिजॉन्टल कंपस नीडल एंड द true geographic north is called a declination. So it is denoted by theta and having a value 11.3 degree. Declination theta is less near the equator and more at higher altitude. इसकी अलग अलग वैल्यू है. Declination in India is very small and it is 0 degree 41 minute east at Delhi and it is 0 degree 50 minute west at
Mumbai. Now we will discuss the next, that is the magnetic inclination or dip. So the dip or magnetic inclination is the angle between the direction of total intensity of magnetic field of earth and horizontal line in the magnetic meridian. Means बेटा कि टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन में उनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू डिप, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं. यहाँ डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आप जरा डायग्राम देखें बेटा. ये मैंने एक जो ब्लैक कलर में लाइन बनाई है, दिस इंडिकेट द मैग्नेटिक मेरिडियन. जो रेड कलर की लाइन है दैट इंडिकेट द ज्योग्राफिक मेरिडियन. और मैग्नेटिक मेरिडियन में और ज्योग्राफिक मेरिडियन में अभी हमने सीखा कि जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों में एंगल बन गया. अब बेटा जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है अगर हम उसको यहाँ पे रिजॉल्व करें, सो बी एच दिस इज द horizontal component of magnetic field, VV this is the vertical component of magnetic field. So this is horizontal, this is vertical, and this line will give the total intensity of magnetic field. So ये जो total intensity of magnetic field वाली लाइन है बेटा, अगर हम इसको नाम दे दें तो ये मैं इसको नाम दे दूंगा OC, इसको मैं बोल दूंगा AD. OA horizontal, OD vertical, OC according to the लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. सो द एंगल बिटवीन दिस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड अ डेल्टा और डिप. सो डिप एट पोल इज 90 डिग्री, इंपॉर्टेंट है. डिप एट इक्वेटर इज 0 डिग्री एंड इट इज 42 डिग्री एट दिल्ली. सो नाउ थर्ड एंड लास्ट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. So the component of total intensity of magnetic field of earth in the horizontal direction. कि उस बेटा जो भी हमने डायग्राम देखा उसमें जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई थी उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था जो उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था दैट इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ in the horizontal direction in magnetic meridian is called horizontal component of earth. तो उसी डायग्राम से बेटा उसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है. अगर हम देखें तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया BE cos delta because we will take the cosine of angle along horizontal. VV equal to VE sin delta. अब हम एक बार इनको दोनों को डिवाइड करेंगे और एक बार स्क्वायर और ऐड करेंगे. जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी और जब स्क्वायर और ऐड करेंगे तो हमारे पास BE की वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की. तो जब इनको दोनों को बेटा डिवाइड करेंगे 2 डिवाइड बाई 1 हमारे पास आएगा VV ओवर VH इक्वल टू tan डेल्टा विच इम्प्लाइज tan डेल्टा इक्वल टू BV ओवर VH. यहाँ से आप डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हो tan इनवर्स VV ओवर VH. और अगर स्क्वायर और ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ से BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा. नाउ कॉस स्क्वायर डेल्टा एंड साइन स्क्वायर डेल्टा जो है वो 1 हो जाएगा अगर हम यहाँ पे देखें और BE स्क्वायर यहाँ बच जाएगा. सो BE को मैं क्या लिख सकता हूँ, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो मैंने यहाँ पे लिख दिया. दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल BE. अब जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बेटा मेजर करने का जो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम होता है मैग्नेटोमीटर. BH कैन बी मेजर्ड बाय मैग्नेटोमीटर. सो आई होप यू हैव इजीली अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ. थैंक यू बेटा.